براہ راست آپ کو لے چلیں گے. اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لاہور اور کمبر شداد کورٹ سے اپنا کاغذ جمع کیا ہے اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ انشاءاللہ تعالی فیبروری 8 کا الیکشن میں بھرپور ہم حصہ لیں گے. میں الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں. جو معاشی بحران ہے تاریخی ہے, جو قائد عوام نے ہمیں نظریہ دیا, منشور دیا روٹی کپڑا مکان کا, جتنا آج اس کا ضرورت ہے شاید ماضی میں اتنا ضروری نہیں تھا جتنا آج ہے. ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان کے عوام جو محنت کرتے ہیں ان کا تنخواہ میں اضافہ ہو. ہم لڑ رہے ہیں تاکہ پاکستان کا کسان پاکستان کی ہاڑی کو ہم ہاڑی کارڈ کے تھرو فائدہ پہنچا سکے, مزدوروں کو ان کا حق دلوا سکے. اس ملک کے جو ہم نے یہ ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا, ہمارا خواب ہے کہ ہم پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر اسی طریقے سے بنائیں تاکہ غریب خاندانوں کو ہم پکا گھر دیں اور ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے سکیں. ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان بھر میں جو مفت علاج کی فیسلٹیز ہیں, جو صحت کے, چاہے وہ ہمارا NICVT ہو, چاہے وہ ہمارا گمبٹ ہو, چاہے وہ ہمارا SIUT کے ساتھ پارٹنرشپ ہو, یا لڑکانہ میں ہمارا چائلڈ لائف کے ساتھ پارٹنرشپ ہو, ہم اسی صحت کا نظام ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے, ہر پاکستانی کے لیے مفت ہونا چاہیے. یہ ہم پاکستان بھر میں اس انیشیٹو کو پھیلانا چاہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اس مشکل وقت میں پاکستان کے نوجوان جو 70% آبادی ہیں ان کا نہ صرف نمائندگی کرتے ہوئے, مگر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو خاص طور پہ ہم نے ان کو ریلیف پہنچانا ہے. نہ صرف روزگار پہنچانا ہے, لیکن جن کے پاس روزگار نہ ہو ان کو وہ مدد دے تاکہ وہ اس مشکل وقت سے تھوڑا سا ان کو ایسے کوئی حکومت کی طرف سے سہولت ملے جو مشکلات میں کمی لے کر آئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. میں یہ جگہ جگہ کہہ رہا ہوں, یہاں آپ سب جانتے ہو, سب سے زیادہ جانتے ہو کہ ہمارا کوئی نہ سیاستدان سے نہ سیاسی جماعت سے مقابلہ ہے. اگر ہمارا مقابلہ ہے تو ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے, اگر ہمارا مقابلہ ہے تو غربت سے ہے, اگر ہمارا مقابلہ ہے تو اس معاشی بحران سے, اس مہنگائی کا طوفان سے اپنے عوام کا ہم نے بچانا ہے. پیپلز پارٹی کا یہ تاریخ ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کے میں اور اس ملک کے عوام مل کے اس نامکمل مشن کو مکمل کر لیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو بادی میں کم سیٹیں ملی تھی پیپلز پارٹی کو, کیا ہوپ ہے؟ آپ نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے, بہت سرگرمیاں شروع کی, جلسے کیے, کیا ہوپ ہے؟ دیکھو, پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس ملک میں وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور عوام پہ ہمارا بھروسہ ہے. قائد عوام نے ہمیں یہ سوچ دیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو اس لیے کہ عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں. میں عوام سے ان کا ساتھ مانگتا ہوں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ماضی میں پاکستان کے عوام نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دی, اور اس ملک کی قسمت بدل دیا, تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی مل کے اس ملک کی قسمت بدل دیں گے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ان کو ریلیف مل سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کیا PTI کے ساتھ پیپلز پارٹی کسی بھی صوبے یا پاکستان لیول پہ کوئی رابطہ کر کے کوئی اتحاد کر سکتی ہے؟ جہاں تک یہ سائفر, جہاں تک خان صاحب کی بات ہے, ریلیف تو بالکل مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مل رہا ہے ماشاءاللہ خان صاحب کو. اور جہاں تک سائفر کیس ہے وہ بہت سیریس کیس ہے. میں تو کسی سیاستدان کے خلاف کوئی سیاسی انتقام کے حق میں نہیں ہو سکتا, اس لیے میں نے خود اپنے پورا زندگی یہ سیاسی انتقام کا ہمارا جماعت نے, ہمارا خاندان نے یہ بھگتا ہے, اور ہم اپنے مخالفین کے لیے بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سلوک ہو. مگر سائفر کیس ایک بہت سیریس ایشو ہے. میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں. سائفر ایک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے. اگر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ چند کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس اپنے گھر میں رکھا تھا, جیسے وہ پریزیڈنٹ نہیں رہا اور امریکن حکومت کو پتہ چلا کہ ٹرمپ صاحب, میں خان صاحب کہنے والا تھا, ٹرمپ صاحب کے پاس یہ ڈاکیومنٹس موجود ہے, تو اس کا گھر میں امریکہ کا جو ادارے ہیں انہوں نے ریڈ کر کے وہ ڈاکیومنٹس واپس لیے.
पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वो रियासत का प्रॉपर्टी है. हमारा नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर किसी तरीके से आ जाएं. तो जहाँ तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत अवाम के सामने, मुल्क के सामने भी होना चाहिए. ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है. तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ कि हर एक साइफर जो आता है उसका बहुत महदूद, बहुत चंद कॉपीज़ बनाए जाते हैं. एक तो वज़ीर ख़ारजा के लिए, एक वज़ीर आज़म के लिए और कुछ हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी अगर रेलेवेंट हो तो उनके पास भेजा जाता है. इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स जो साइफर वज़ीर ख़ारजा का था, जो साइफर सदर पाकिस्तान के पास किया, जो साइफर दूसरे लोगों के पास किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है. जो साइफर इमरान खान साहब को बहैसियत एक वज़ीर आज़म उसके पास किया था, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है. खान साहब ने खुद मीडिया पे आकर ये कहा है कि उससे गुम हो गया. और उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वो ही साइफर इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है. ये एक बहुत ही सीरियस इशू है. मेरा ख्याल में अदालत को इस इशू को उसी संजीदगी के साथ लेना चाहिए जितना इसने हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठते हैं, जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए. एक पूरा तरीके से यह हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि इस साइफर के पीछे कहानी क्या है. जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जोर पे ये इलेक्शन लड़ रही है. अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है. मैंने तो कहा है कि जो सियासी कायदीन हैं उनके खिलाफ एतराज़ात हो सकते हैं, दूसरे राय हो सकता है, मगर जो सियासी कारकुन हैं वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखे, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या PTI का हो या किसी जमात का हो, उनका हम इज़्ज़त करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं. वो हम चाहते हैं कि वो अपना सियासत करे. उनको हम दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप सियासत करें. इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी कारकुन को ये पैगाम देना चाह रही है कि हम ही वो सियासी जमात है जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते हैं. तो मेरा ख्याल में काफ़ी एक स्कोप है कि जो सियासी कारकुन शायद किसी और सियासी जमात से ताल्लुक़ रखे, उनके साथ हम मिलके इलेक्शन में ज़रूर काम करेंगे. मगर जहाँ तक कोई सियासी जमात है, ना उनके साथ कोई बात तय हुआ है, ना बातचीत चल रही है. हवाएं चल रही हैं मुल्क भर में, इस सिलसिले में ठंडी हवाएं तो हमारे यहाँ है भाई. सर इलेक्शन मेरा सवाल है, आऊँगा आपके पे. एक मिनट भाई. सर, आपने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, मार्च निकाला, उसका बेनिफिशरी तो कोई और जाके बना और अब फिर ये गलतियों से सीख चुका हूँ मैं. अब फिर ये सारा सिलसिला चल रहा है. हालात ऐसे मुझे नज़र नहीं आते कि कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लाए और इंडिपेंडेंट हुकूमत बना ले और फिर आपको कहा जाए कि जमहूरियत बचाने के लिए साथ दें, और यही लोग जो आज आप टारगेट हैं, तो क्या फिर देखो, एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ यू फूल मी वंस देन शेम ऑन यू एंड इफ़ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी. तो अब मैं सीख चुका हूँ इंशाअल्लाह ताला. माजी के से जो भी हुआ है उससे हम सीख चुके हैं. हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवामी हुकूमत बनाएंगे जहाँ जियाला PM होगा और जियाला वज़ीर आज़म. पार्टी के खिलाफ उनको लीड कर रहा है नवाज लीग, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? जी सर, इसी से रिलेटेड है कि मियां साहब को जो मुख्तलिफ अदालतों से और केसेस से बरी किया जा रहा है, क्या उनके लिए राह हमवार की जा रही है? आप उनके हवाले से क्या कहेंगे जो फैसले जल्दी? लोग जहाँ तक इत्तेहाद हैं हर इलेक्शन में होते हैं. इस इलेक्शन में हम दावत देते हैं उन सबको कि आए, आप एक होके हमारा मुकाबला करें. आप इधर उधर होके हमारा मुकाबला करेंगे तो मज़ा नहीं होगा. तो आए, सही तरीक़े से मुकाबला करें. जहाँ तक मियाँ साहब की बात है और केसेस का रिलीफ का सिलसिला है, आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला. इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया. सर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो PTI के सिलसिले में जो फैसला दिया है, भले का निशान वापस लिया है, तो आप समझते हैं कि सब पार्टियों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? जहाँ तक भला के निशान की बात है ना, ये कभी इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड आप पाकिस्तान की पहले इलेक्शन से लेके
आप पूरा रिकॉर्ड चेक करें, कभी भला नहीं था। ख़ास तौर पे खान साहब को फेवर करने के लिए एक निशान बनाया गया, उसको दिलवाया गया, तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल में इसका कोई असर नहीं होगा। सर मेरा आपसे गैर सियासी सवाल है, आपने तकरीबन चंद साल पहले कहा था कि आपकी जो दो बहनें हैं जहाँ पर वो कहेंगी वहाँ पर आप जो है वो शादी करेंगे, क्या आप भाभी के नाम पे आप दोनों बहनों को लड़ाना चाहते हैं या नाना की रवाज को काम करते हुए दो शादी करने का इरादा है? नहीं, मैं बहनों के बिल्कुल ही जो भी वो कहेंगे ऐसे ही होगा। सर सियासी सवाल है सर, NA 196 पे शहजादपुर पे सर पिछले टेन्योर में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शाबान मीरानी साहब जो है वो इलेक्टेड थे, अपने हल्के में नज़र कभी भी नहीं आए और ना ही उनके फंड्स का पता है कि वो आया यूटिलाइज हुए भी या नहीं हुए या किसने किए। तो सर इस दफ़ा आपने सर इस पे वो किया है, अगर आप लाड़काना और शहजादपुर दोनों से जीतते हैं तो ये NA 196 बाय इलेक्शन की तरफ जाएगा, तो सर फिर क्या ऐसे ही? देखिए, जहाँ तक मीरानी साहब की बात है, मीरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक असासा है, सीनियर फिगर है, साबिक वज़ीर आला है, और हमने बिल्कुल पिछले इलेक्शन में जो हल्का बंदिया के सिलसिले में शिकारपुर का नुकसान हुआ, हमने समझा कि मीरानी साहब जो सबसे सीनियर है वो ही हमारे लोगों का ख्याल रख सके, और उसका ईमानदारी पे, ट्रांसपेरेंसी पे भी कोई शक नहीं कर सकते। उम्मीद है कि उम्मीद नहीं, मुझे पता है कि अगर मीरानी साहब ने कोई फंड्स मिले भी सही, वो फंड्स ज़रूर वहीं लगे होंगे जहाँ ज़रूरी है। मगर अब मैं चाहता हूँ, इसलिए दोनों ये कॉन्स्टिट्यूंसीज लाड़कानों से या ये जो अब हिस्सा हो गया है, ये दोनों शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूंसीज होते थे, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का ज़िम्मेदारी लूँ, चाहे वो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डेवलपमेंट के काम हो, चाहे इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो भी इश्यूज़ होंगे, इंशाअल्लाह ताला अब मीरानी साहब का नहीं, मेरा जिम्मेदारी है। कब तक अपनी उम्मीदवारों को आप जारी करेंगे? वो उस डेट से पहले जब तक हमें फाइनल करना हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी इस बार फैसला किया है कि एक खानदान में 2 सीटें नहीं जाएंगी। काश भाई काश, अभी तक मुझसे ये नहीं हो पाया, एक दिन हो जाएगा। नहीं लिया है जो गजा की सूरत हाल, क्या कहेंगे आप? एक तो गजा के जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हमारा जो इंटरिम वज़ीर ख़ारजा है जिलानी साहब, उन्होंने मेहनत भी किया है। हमारा जो नुमाइंदा है यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब, जो हमारा वहाँ का एम्बेसडर है, शायद आपने उनकी कोई तकरीरें और पैगामात सुने। अगर कोई यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन का केस लड़ रहा है तो पाकिस्तान ही लड़ रहा है, उस पर मैं तो फ़ख्र करता हूँ। मगर इंटरिम गवर्नमेंट का एक उतना ही कैपेसिटी होता है। उम्मीद है जल्द से जल्द एक मुंतखब हुकूमत आएगा जो सही तरीके से पाकिस्तान के जो गज़ा के और फ़लस्तीन के बारे में जो हमारे अवाम का फीलिंग्स है, उनको हम ना सिर्फ कन्वे कर सकेंगे पर ऐसे उनका आवाज़ बन सकेंगे और उनके मसाइल हल कर सकेंगे। लाड़काना प्रेस क्लब मोहतरमा शहीद ने बनाई थी, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि लाड़काना प्रेस क्लब निसार साहब ने वहाँ संगे बुनियाद रखा था, तो मेहरबानी करके दावत देते हैं आपको लाड़काना प्रेस क्लब, आप आए अपनी हल्के की प्रेस क्लब है आपकी। I'd love to मैं भी अपना टीम से बात करता हूँ कि मुझे मतलब वहाँ भी एक मीडिया टॉक हो जाएगी। ज़रूर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर ज़रूर आऊँगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। लाड़काना में चेयरमैन पीपल्स राहुल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कि हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत, माशी बहरान और महंगाई से है। उम्मीद है आवाम और हम इस मुल्क की किस्मत बदल सकेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि साइफर केस एक संजीदा मसला है। पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है वो रियासत की अमानत है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।